distance from the point will belong to that centroid. तो वो उसी क्लस्टर को बिलोंग करेगा. अब ये एक इटरेशन हो गया, सभी डेटा पॉइंट्स अपने क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड को पहुंच गए. एल्गोरिथम यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी. इट रिकम्प्यूट्स द सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर. अब फिर से उन सभी डेटा ऑब्जेक्ट्स में से कैलकुलेशन होगी और ये देखा जाएगा कि अब नया सेंट्रॉइड क्या निकल के आ रहा है. फिर वही काम रिपीट होगा. और ये काम कब तक रिपीट होगा? पहले काम कौन सा रिपीट होगा? अगेन आपको सभी डेटा पॉइंट्स को उन क्लस्टर के सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. When the distance is calculated, what you do here, you again assign the data point to the closest centroid. Now the thing is that when this algorithm will get terminated, the centroid doesn't change. It means if the cluster center doesn't changes, then the algorithm gets terminated. So what I have explained here, in other words, see, the centroids are often chosen randomly. Okay, ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ और पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, आपने कुछ और कर लिए, बट द आंसर और द फाइनल क्लस्टर और फाइनल ग्रुप्स विल रिमेन द सेम. So clusters produced may vary from one run to another. लेकिन जब आप लास्ट रन तक जाएंगे, you will get the same result. What is the method to calculate the centroid? We typically take mean of the data points in the cluster. This is only the reason why this algorithm is known as means. So K means clustering. So centroid is calculated with the mathematical formula of mean. Now, how we are going to check whether how close the data point is with respect to the centroid? It is measured with the help of Euclidean distance, cosine similarity, correlation, Manhattan distance. There are many measures we have seen earlier also. तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपने कौन से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है. द मिनिमम द डिस्टेंस, द मोर द क्लोजर property. So K means will converge, that is centroid move at each iteration, and most of this convergence happens in the first few iterations. तो शुरुआत में आपको ये ज्यादा डेटा पॉइंट्स इस ग्रुप से उस ग्रुप में होते हुए दिखेंगे, बट लेटर ऑन वेरी फ्यू मूवमेंट्स आर देयर. अब यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर बता दें. आप ये ध्यान रखिए कि जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू टू थिंग्स. द फर्स्ट इज up to which iteration you have to do the calculation. ये आपको कितने iteration तक जाना है. Second, what is the method that will be used to find the distance between the centroid and the point, that is the centroid and the particular point. So either he will give Euclidean distance, he may give cosine similarity, correlation, etc. So this K means will converge. We have seen this. What is the stopping point when your algorithm gets terminated? ये वो तब होगा जब आपके जो क्लस्टर का सेंट्रॉइड है वो चेंज होना बंद कर दे. तो नॉर्मली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस कैलकुलेशन तक जाएं, तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है दैट यू हैव टू डू थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन एटसेट्रा, अंटिल जब आप इसको प्रोग्राम करते हैं, व्हेन यू विल सी इट इन वेका, you will observe that the system is capable enough to do 100 iterations. तो उसके लिए ये बड़ी बात नहीं है. So to sum up all these things, let us do a numerical to understand what we have taught. See here, I am showing you the problem. आपका प्रॉब्लम ये है कि you are given 8 points in 2 dimension, that is XY representation, and you have to cluster them into 3 clusters. The points are A1, A2 up to A8 and the respective X and Y coordinates are given. Here examiner has given a hint. You can use the initial cluster centers as A1, A4, A7. It's up to you. You can do it randomly. The answer will remain the same. Okay. And how you are going to calculate the distance between 2 points? It is Manhattan distance. The distance between 2 points A and B will be calculated by mod of X
x2 minus x1 plus mod of y2 minus y1. This is how we are going to calculate the distance, or we are going to see the similarity. Okay. Now my question arises here: what is the value if you have to perform k-means clustering? What is the value of k here? Yes, anyone? What is the value of k? 3. 3. Nice, very good. अगर एग्जामिनर ने आपको A1, A4, A7 नहीं कहा है तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ द हिंट इज गिवन A4, टेक इनिशियल सेंटर साइज A1, A4 एंड A7, इससे हमें फायदा क्या होगा? एनी गेस? अगर हम इस इनिशियल क्लस्टर को लेते हैं और नहीं लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? यस, एनीवन? मान लीजिए हमने इसकी बात नहीं मानी। आई हैव नॉट टेकन माय इनिशियल सेंटर as A1, A4 and A7. I have taken it as A2, A5 and A8. तो अंतर क्या आएगा? तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। Very nice, very nice. Your name, please? Yes, your name, please? सर आंचल। आंचल। आंचल बहुत रिस्पॉन्सिव बच्ची है भाई, बहुत सही बात है। आपकी कैलकुलेशन जो है लेंदी हो जाएगी, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो लेट अस सी दिस हाउ इट वर्क्स। अब आपको सभी चीजें क्लियर हैं कि हमें k मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगानी है। यहाँ k की वैल्यू 3 है और जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लेंगे सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए वो हमारा मीन्स होगा। मीन्स मीन्स मीन या एवरेज। ओके, एंड वी हैव टू क्लस्टर ऑल दिस 8 ऑब्जेक्ट्स। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम आपको, चलिए बताते हो। हाँ, हमें आपकी पूरी क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हमने k की वैल्यू ले ली 3, ठीक है, और बाद में वो इस तरीके से एल्गोरिथम के बिसाइड्स में कॉन्सेप्ट रन कर रहा है कि जो आपस में सबसे क्लोजेस्ट है, और वहां जो क्लोजनेस वैल्यू ली है हमने, डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो है दोस्ती, योर फ्रेंडशिप। इट मीन्स द फर्स्ट ग्रुप विल कंटेन those persons who are good friends among themselves, the second who are good among themselves, good friends among themselves, and the third, and so on. So हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने रैंडमली आप में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और 3 कोने में खड़ा कर दिया ऑन ट्रायंगल फैशन। और अब हम क्या करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट को उसी से चेक करेंगे, तीनों से। यानी एक बच्चे को रैंडमली पिक किया, उन तीनों ग्रुप में चेक किया कि भाई इनमें सबसे ज्यादा इनकी दोस्ती किससे है, जिस ग्रुप में है वो उसको हम उसके साथ एसोसिएट कर देंगे। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, कोई गेस कर सकता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बात समझ में आ रही है? हमने 3 लोगों को सिलेक्ट किया, तीनों को अलग-अलग कोने में खड़ा कर दिया ट्रायंगल फॉर्म में, और सभी बच्चों को अब उनसे उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा सिमिलैरिटी मेजर है दैट इज फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के बिहाफ पे वे एक दूसरे से उन तीनों से कंपेयर करेंगे, जो जिससे क्लोजेस्ट होगा, जो दोस्ती सबसे ज्यादा होगी, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप को चला जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको होती हुई दिख रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन टिपिकल है, बट आई वांट योर गेस। हम देखना चाहते हैं कि सेक्शन ए के बच्चे गेस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमेशा आपसे ही अच्छे आंसर आते हैं हमें। सर एक की दोस्ती 2 लोगों से भी हो सकती है, जिससे 2 लोगों से, ये बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो अगर दोनों से बराबर है, ठीक है, तो फिर किसी में भी चला जाए। वेरी गुड, एक ही ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम जो सुनना चाहते हैं देखिए वहां तक आप पहुंच पाते हैं कि नहीं। अदर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अगर दो क्लस्टर से सेम डिस्टेंस है तो आप किसी में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर किसी से दोस्ती ना हो तो आउटलायर हो गया वो। वेरी नाइस। तो जिनसे क्लस्टर करना है वो भी दोस्त हो सकते हैं। ओके, एनी अदर? वैसे एक चीज और बताएं, यही प्रॉब्लम है के मींस की। दोस्ती नहीं भी हो तो भी वो तीनों में से किसी एक में डालेगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा आंसर था।
रियली अप्रिशिएटेड। अगर किसी से भी दोस्ती नहीं है, तभी वो किसी न किसी ग्रुप में चला जाएगा और वो आउटलायर की तरह बिहेव करेगा उस ग्रुप में। एनी गेस अदर? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? सर जिससे क्लस्टर करना है वो 2 लोग भी दोस्त हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी आंचल ही है क्या? सर अनुमेहा। अनुमेय बोलते हैं। बात सही है। वेरी बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जो 2 लोग पता चल रहा है वो एक साथ होने थे, वो तो खुद ही पहले से ही अलग कर दिए हमने उन्हें उठा के। इसीलिए हम इटरेशंस करते हैं बेटा। इसीलिए आप कहोगे कि सर जब आपने पहली बार में एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किया और एक इटरेशन के बाद सभी दोस्त एक साथ हो गए हैं, तो फिर आप दोबारा इटरेशन क्यों कर रहे हैं? है ना? तो रीजन बिहाइंड इज दैट इट मे हैपन दैट कि जिन 3 लोगों को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया था वो तीनों आपस में ही दोस्त हों। यही प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है व्हेन वी डू इटरेशन बाय इटरेशन। वेरी नाइस। दिस इज व्हाई ये क्लास हमें बहुत अच्छी लगती है। फाइन। तो अब देखते हैं बेटा ये हाउ वी विल रन इट। I am giving you the solution and I know you have done it in your mind. So अभी हमने इनिशियल क्लस्टर एसोसिएट किया किसको? A1 को, A4 को और A किसको दिया था? A7 को। इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। A1 is 2,10, then this A4 is my 5,8 and this A7 is my 1,2। तो ये तीनों पॉइंट्स एक्चुअली में एक क्लस्टर को डिनोट कर रहे हैं जिनके ये क्लस्टर हेड हैं। अब हम क्या करेंगे, जितको भी जितने लोगों को हमको इनमें डिवाइड करना है उन सबसे उनकी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। एंड द हियर रिमेंबर द डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन लाइक दिस। अगर यही डिस्टेंस फार्मूला यूक्लिडियन से कैलकुलेट होता तो आपका फार्मूला बदल जाता। तब हो जाता अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या फार्मूला दिया है। तो बताइए 2,10 से 2,10 की डिस्टेंस कितनी होगी? 0। पहला आपको करना पड़ेगा 0। तो बाय डिफॉल्ट ये पहला पॉइंट, अच्छा यहाँ पे 0 हो गया। 5,8 से क्या होगी? नहीं नहीं 2,8 और 5,8 इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फंक्शन इट इज 3। तो अभी ये बोला गया है कि सम अप कर दीजिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को, है ना बेटा? तो आप क्या करोगे, इसको सम अप कर दोगे तो इट इज राइज टू 3 प्लस 2 दैट इज 5। 5। नाइस। और तीसरे से कितनी होगी? 1 प्लस 9। हाँ टोटल 9 होगी। अब ये बताइए हम पहले वाले को कह रहे हैं दिस इज माय क्लस्टर 1, दिस इज माय क्लस्टर 2 एंड दिस इज माय क्लस्टर 3। अब ये किस क्लस्टर को बिलोंग करेगा? 1 2 3 में से किसको जाएगा? 1। 1 because this A1 2,10 poses the minimum distance with cluster 1। तो यहाँ आप लिख देंगे क्लस्टर के नीचे 1। फाइन, वेरी नाइस। अब क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा था, एक कैलकुलेशन और करिए और ये बताइए A2 किस क्लस्टर को जाएगा? डायरेक्ट आई वांट द आंसर। पॉइंट A2 will belong to cluster C1, C2 और C3। ये आपने बता दिया, आप ये पूरी टेबल समझ गए। 3 3 क्लस्टर। क्लस्टर नंबर प्लीज रिपीट क्लस्टर नंबर 3। 3। 3। Let us check it. Very nice. Let us check all these. So first one is 1 and then next 3. Very nice. तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप सभी कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। Then आपके पास आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन यू विल गेट दिस टेबल। हैव अ लुक ऑन दिस टेबल। यहाँ पे अभी तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट, लेट मी नो एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क, क्योंकि हमने बता दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप समझ गए तो आपको ये हमेशा पता चलेगा कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के इनसाइड क्या हो रहा है। केवल उसका
मेथड चेंज होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। एनी क्वेरी अप टू हियर? फाइन, गुड। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से अब हमारे 3 क्लस्टर थे। इन क्लस्टर 1 वी हैव 1 पॉइंट 2,10। इन क्लस्टर 2 वी हैव गॉट जिसके आगे 2 लिखा है तो 1 2 3 4 एंड 5। इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लिख लिया, दे आर 5 इन नंबर। एंड क्लस्टर 3 2 पॉइंट थे 2,5 एंड 1,2। यहाँ पे हमारा एक इटरेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम आपकी बात से वापस आते हैं। ये हो सकता है कि जो हमारे ये 2-3 पॉइंट थे ये आपस में एक साथ हो जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बनती है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना आपको जो है दिमाग से उतर गया। आप ये बताइए, इन सभी डेटा पॉइंट्स को आप देखते ही बता सकते हैं क्या कि 3 क्लस्टर बनेंगे तो हर एक क्लस्टर में कौन होगा? केवल देखकर। यस सर। हाँ, कैसे बता सकते हो, जरा बता दो हमें। आपके पास 8 नहीं, अब यही ना, कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने कहा कि जस्ट बाय लुकिंग एट दीज पॉइंट्स ना, कि केवल आपको ये पॉइंट दिए हो, इसके आगे कुछ ना दिया हो, और इन पॉइंट्स को कहा जाए कि आपके पास 3 क्लस्टर बनाने हैं, बताइए हर एक क्लस्टर में कौन-कौन से पॉइंट आएंगे? कोई ना के मीन्स लगानी है। ये मुझे पहले आपसे क्वेरी करनी चाहिए थी, आई फॉरगॉट टू आस्क। तो इंटरेस्टिंग बन जाता है इससे चीजें। तो आप देखते ही बता सकते हैं, आप बताइए, और अगर बता सकते हैं तो आंसर बता दीजिए। तो ऑब्वियसली नो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप by observing all these points you cannot say that to which if I got 3 clusters, तो उन तीनों क्लस्टर में कौन कौन से पॉइंट होंगे। एक काम आप कर सकते हैं, पूछिए क्या? आप इन सभी को प्लॉट कर दीजिए। ये देखिए हमने इनको उठा के प्लॉट कर दिया। इस लास्ट फिगर को देखिए, है ना? इसमें बताइए A4 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं आपको? मैंने एक पैराग्राफ पे इसको प्लॉट कर दिया है। A4 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,8। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब ये देखिए, आप इन सभी को ऑब्जर्व करते हुए ये बता सकते हैं कि हमारे 3 क्लस्टर बन रहे हैं तो कौन-कौन से पॉइंट्स एक साथ होंगे। ये आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि सबसे क्लोज होंगे वो एक साथ होंगे। यस, सो A1, A8, A4, A5, A6, A3 ये एक साथ होंगे, A7 एंड A2 विल एक साथ होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हमारा टारगेट यही है कि जो हम काम कर पा रहे हैं, हमारी एल्गोरिथम ये काम कर पा रही है कि नहीं, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ओके? और एक चीज और हमने आपको बताई हुई है दैट इट इज नॉट ऑलवेज द केस दैट डेटा इज ऑफ न्यूमेरिकल काइंड। इट मे बी ऑर्डिनल, इट मे बी नॉमिनल, इट मे बी रेशियो स्केल्ड, इट मे बी बाइनरी, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है? तो यही क्लस्टरिंग की खासियत है। अब आपको ये आंसर दिख रहा है और हम इसी आंसर को फाइंड करेंगे किससे? के मीन्स क्लस्टरिंग से। तो अब हम वापस आते हैं। तो फाइनल आंसर आपको क्या दिख रहा है कि मेरे 3 ग्रुप्स हैं। इन द वन ग्रुप आई हैव गॉट A1, A8 एंड A4। इन द नेक्स्ट ग्रुप आई विल गेट A2 एंड A7 and in the other group I will get A5, A3 and A6 because they are similar among themselves. And what is the criteria for similarity? The distance between them, which has been calculated by the formula of Manhattan distance x2 minus x1 का mod plus y2 minus y1 का mod। ओके फाइन। तो अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं बेटा। तो ये क्या, मेरा ये आंसर जो आपको दिख रहा है, क्या वो पहले इटरेशन के बाद आपको होता हुआ दिख रहा है? हमने पहला इटरेशन किया, हमें क्लस्टर 1 में 2,10 मिला, क्लस्टर 2 में ये 5 पॉइंट मिले, क्लस्टर 3 में ये 2 मिले। क्या आंसर हमें मिला है? नो। ओके, तो व्हाट यू विल डू हियर, यही नीड है, आपको इटरेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ इपॉक्स
वी हैव टू इंक्रीज. जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ इपॉक्स होंगे द मोर एक्यूरेट इज योर आंसर. फाइन. अब हमने k मींस क्लस्टरिंग में k देख लिया. k इज व्हाट? आवर नंबर ऑफ क्लस्टर्स. डिस्टेंस फंक्शन गिवन ही है. अब इसमें जो सेंट्रॉइड कैलकुलेट होता है वो कहलाता है मीन्स, दैट इज एवरेज. अभी हमने मीन तो कहीं यूज ही नहीं किया, हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है. ओके. तो अब देखते हैं कि इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे. अब हम नए सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे. तो क्लस्टर 1 का सेंट्रॉइड क्या निकलेगा? क्लस्टर 1 में आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? इट इज ओनली 1. तो व्हाट विल बी द न्यू सेंट्रॉइड? आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू सेंट्रॉइड फॉर क्लस्टर 1. ये क्या हो जाएगा? बताइए, कोई गेस सेम कर सकता रहेगा है? 2,10. वेरी गुड. इट विल रिमेन द सेम 2,10. अगर हम क्लस्टर 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? हमें x का एवरेज ले लेना है और y का ले लेना है. तो क्या हो जाएगा? Average of the 2 points 2,5 and 1,2. What will be the new average or new centroid? बताइए, उस सामने दिख रहा है. It's not typical. That's why I asked for cluster 3. 1.5, केवल वेरी गुड, वेरी गुड. ये जितने लोग के हम नाम पूछते हैं भाई उनको हम अच्छे नंबर देंगे, हम पहले बता चुके हैं. ये जितने इंटरनल और जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कराएं. ओके. तो फाइन, वेरी नाइस. 2,10 एंड इट इज 1.5, 3.5. इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे. 8 + 5 + 7 + 6 + 4 by 5 और सिमिलरली 4, 8, 5, 4, 9 इसको सम करके 5. तो इट इज 6,6. अब हमारे पास नए क्लस्टर हेड मिल गए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,6, 1.5, 3.5 और 2,10. अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही काम फिर से करना है. चेंज क्या आएगा? जो आप डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर रहे थे इन सभी पॉइंट्स की, यहाँ पे ये बदल जाएंगे. तो 2,10 नहीं बदला है तो इट विल रिमेन सेम. 5,8 की जगह आप किसको रिप्लेस कर देंगे? 6,6. ओके. और 1,2 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 1.5, वेरी गुड. अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया. अब आपको फिर से जो काम हम करते रहे हैं वही करते रहेंगे. और इससे आप ये चीज फायदा देखिए कि जो आपस में ये एक्चुअल पॉइंट्स थे, अब वो अगर आपस में अच्छे दोस्त हैं, जैसे हमने दोस्ती वाला एग्जांपल लिया, अब उनको रास्ता मिल गया आपस में वापस आने का. तो देन व्हाट यू विल डू हियर, यू विल मेक द सिमिलर टेबल एंड कैलकुलेट द सेंटेंस. तो अब जब आप ये काम करेंगे तो आफ्टर द सेकेंड इटरेशन, देखिए ये पहला था, पहले इटरेशन पे आपको ये आंसर मिला था. आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. दिस यू हैव गॉट. ओके. A1 एक ग्रुप में था, A2, A7 एक साथ था, A4, A8, A5, A3 एंड A6 दैट वर टुगेदर. अब जब आप ये दोबारा ये कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ये कैलकुलेशन दिखाई नहीं गई है. आफ्टर द सेकेंड इपॉक you will observe that the points A1 and A8 will come together. ये हुआ कैसे? उसी टेबल में जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा A1 और A8 ये दोनों क्लस्टर 1 को बिलोंग करेंगे. A3, A4, A5, A6 will be belonging to group 2. A2 after second epoch this will answer. फिर आप क्या करेंगे? और फिर से आप उनके न्यू सेंट्रॉइड चेक करेंगे. When you will go for the new centroid, you will find that the new centroid after this second epoch are 3.66 and 9. For cluster 2, it becomes 7,4.33, and for cluster 3, 1.5, 3.5. फिर आप क्या करोगे? फिर से
क्लस्टर के जो सेंट्रॉइड थे वहां पे आपने C1 की वैल्यू रख दी, C2 की रख दी, C3 की रख दी, एंड यू विल अगेन कैलकुलेट द होल थिंग, एंड आफ्टर द थर्ड इपॉक जब आपका थर्ड क्लियर हो जाएगा तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, द लास्ट वन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हम कितने इपॉक करेंगे, तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। इट इज नॉट द केस कि आप जो है 100 इपॉक कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हैं। तो एग्जामिनर विल आस्क यू टू अप टू विच इटरेशन और विच इपॉक यू हैव टू गो टू, और मैक्सिमम आप 2 से मतलब 3 इपॉक तक आप जाएंगे मैक्सिमम, और आप कह देंगे कि आफ्टर थर्ड इटरेशन द 3 क्लस्टर्स फॉर्म्ड आर दिस। अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया है 2 क्लस्टर फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिखेंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, नेवर राउंड ऑफ द वैल्यूज। एम आई ऑडिबल? यस और नो? यस सर। यस सर। तो कभी भी राउंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका डेटा सेट इतना छोटा है कि अगर आपने राउंड कर दिया, पता चल रहा है 4.3 को 4 लिख दिया, है ना, 3.54 लिख दिया, तो ये इससे आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आएगी। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। In K means clustering, whenever it comes to you as a numerical problem, never ever round off the values. डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको लेके ही चलना है, क्योंकि आपका डेटा सेट ही इतना छोटा है, तो एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। नाउ दिस एंड्स अप ऑल द थिंग्स इन K means clustering। तो पहले तो हमने ये देखा कि व्हाट इज क्लस्टरिंग, व्हाई वी डू क्लस्टरिंग, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इसके इनसाइड में। अब आप इसको चाहें तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ था लैब में, डिसीजन ट्री बना के आपने देखा था। इफ यू हैव इंस्टॉल्ड वेका इन योर सिस्टम, जस्ट बाय द सेम मेथड, एक डेटा सेट लीजिए, उस पे अप्लाई करिए क्लस्टरिंग, और क्लस्टरिंग में मेथड सेलेक्ट कर लीजिए के मींस क्लस्टरिंग। वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी इटरेशंस डू यू वांट, आप उसमें नंबर ऑफ इटरेशंस को वेरी कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर। ये क्वेश्चन अभी बदल जाता इफ इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू क्लस्टर दीज डेटा पॉइंट्स इन 2 ग्रुप्स। तो यहाँ जो आपका लास्ट आंसर यहाँ पे जो दिख रहा है, वी हैव फॉर्म्ड 3 ग्रुप, ये आपको दिखेगा कितने ग्रुप्स में, इट विल बी इन 2 ग्रुप्स। नाउ आई वेलकम योर क्वेरीज इफ एनी। कोई क्वेरी होनी जरूर चाहिए, ऐसा नहीं है सबको समझ में आ गया होगा, कुछ तो क्वेरी रहनी चाहिए, सो आस्क इट विदाउट हेजिटेटिंग। कोई क्वेरी बेटा? सर अगर k की वैल्यू 5 गिवन है तो हाँ हमारे पास 5 क्लस्टर्स होंगे। हाँ। सर तो इटरेशंस 5 टाइम्स करना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपको 3 क्लस्टर दिया है तो 3 इपोक्स किया आपने या 3 इटरेशन किए, है ना। इट इज अप टू यू। मैंने कहा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स 5 हो या नंबर ऑफ क्लस्टर 2 हो, आप अपनी सुविधा के लिए, मोर एक्यूरेसी के लिए 3 बार आप करिएगा, ठीक है। और अगर आपका ओके टाइम लिमिटेड है तो आप कह देंगे कि आफ्टर 2 इपॉक्स माय रिजल्ट इज दिस वन, ओके। Otherwise, the examiner will give you find the clusters after first 3 iterations. Okay? ओके तो सर। ये कोई नहीं है कि 5 है तो आप 5 इटरेशन करेंगे, 2 है तो 2 इटरेशन करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या हम k की वैल्यू 1 लिख के कैलकुलेट, अगर हमें बोला गया हमें k इक्वल टू 1 प्रोवाइड करा दिया गया, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या फायदा होगा उसका? सारे फायदा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में होंगे? हाँ, तो कोई फायदा होगा? नो सर। कोई फायदा नहीं नहीं है। हाँ, इसलिए k इक्वल टू 1 की कोई बात नहीं की जाती है। क्लियर? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कहा जाए कि k इक्वल टू 1 एक क्लस्टर बना, तो ऑब्वियसली इफ माय ग्रुप इज ओनली 1 देन द एंटायर होल ऑफ द थिंग विल कम इन दैट ग्रुप। व्हाट इज द नीड टू डू ऑल दिस थिंग? तो k इक्वल टू 1 के लिए ये चीज अननेसेसरली आई गई है कि
वैलिड वाली बात नहीं कहेंगे, बिल्कुल बकवास। तो दिस इज हाउ इट वर्क। तो अब आपको ये सीन क्लियर हो गया कि क्लस्टरिंग होती क्या है ना? क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब ये चीज देखिएगा, यहीं पे मैं आपको फिर से, कभी बच्चे अभी भी कुछ कंफ्यूज दिख रहे थे आज कि क्लासिफिकेशन को फिर से इससे रिलेट कर रहे थे। अगर मैं क्लासिफिकेशन करता तो मेरे पास पहले से 2 नेम्ड क्लासेस होती हैं, उनका लेबल्स लगा हुआ होता है, ठीक है? और हर एक ऑब्जेक्ट को उन क्लास से मैं चेक करता, अगर उनके एट्रीब्यूट मैच कर रहे हैं तो उसमें चले जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब मैंने कहा आई वांट k इक्वल्स टू 3, अभी किसी ने कहा आंचल आई वांट इक्वल्स टू 4, मैंने कहा आई वांट इक्वल 5, क्या होगा? डिफरेंस। लेकिन यही अगर हम कहें कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस फिक्स हैं, आप नई क्लास तो क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि फीमेल में अगर हमको पहले से पता है कि वन क्लास इज मेल एंड अदर क्लास इज फीमेल, और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं, तो अगर हम जो है मोबाइल लेके आएंगे तो हम मोबाइल को भी या तो मेल में डाल देंगे या फीमेल में डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास क्लास 2 डिफाइंड है पहले से। बट इफ इट इज द केस लाइक क्लस्टरिंग, तो अब k इक्वल्स टू 2 हुआ है तो हो सकता है कि ये किसी में न जाए और हो सकता है चला भी जाए। लेकिन 3 अगर हुआ है तो मोबाइल ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। और इस तरीके से आप आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं। Am I clear what I want to state here? Okay, fine. तो और कोई क्वेरी? इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको पूरी क्लस्टरिंग समझाऊंगा। अब केवल सब सर में जितने कॉन्सेप्ट ज्यादा आएंगे। इटरेशन करेंगे, सर जितने ज्यादा इटरेशन करेंगे उतने ज्यादा सही वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही, एक्यूरेसी उसी पे डिफर करेगी, है ना? जितने ज्यादा इटरेशन होंगे उतना एक्यूरेट आपका हो जाएगा। तो आपको मैं रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो आप कहोगे कि सर मैं तो एक्यूरेट करने के लिए मैंने 10 इटरेशन किए तो मैंने 1 घंटे लगा दिए। तो ये काम आपको पेपर में ही करना है। आपको जब आप अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ इटरेशंस डाल दीजिए, कंप्यूटर तो उतना ही टाइम लेगा, जितने 1-2 इटरेशन बोलेंगे तो भी उतना ही टाइम लेगा, है ना? इस वजह से आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। अच्छा ये बताइए, हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये कहना चाहते हैं कि अब यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम टर्मिनेट कर जाए, वो कंडीशन क्या होगी? हम उस पे रिस्ट्रिक्शन डालना ही नहीं चाहते हैं इटरेशंस की। हम बिल्कुल ही करेक्ट चाहते हैं, उसके आगे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी इटरेशंस का आंसर सेम आ जाए तब टर्मिनेट हो जाएगा। माने लगेगा। हाँ। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। अच्छा ये लड़का जो बोल रहा है उसका नाम क्या है भई ज़रा बताओ? अन्वेष। अन्वेष, अन्वेष, नाइस। एक्चुअली हम पीडीएफ ही देख पा रहे हैं। नाउ अन्वेष, माय क्वेश्चन इज दैट एक्चुअली हम पीडीएफ ही देख पा रहे हैं। नाउ अनवेश माय क्वेश्चन इज दैट आप बाय डिफ़ॉल्ट कैसे मान लेंगे? अभी देखो इन्होंने जो बताया वो सही है, लेकिन हम उसको टेक्निकल बात बोलना चाहते हैं। हाँ, हाँ। ये पे आप कहें कि हो जाए, तो हम कह देंगे कि बाय एल्गोरिथम विल टर्मिनेट। अभी पुराना आंसर 99% सही था, कोई उसमें कमी नहीं है, मैं हाँ। उसको थोड़ा अदर वे में पूछना चाहता हूँ। तो टेक्निकली अगर आपसे पूछें कि व्हेन यू विल टर्मिनेट योर एल्गोरिथम? सर जब लास्ट वाला, जो हम लास्ट वाला आंसर सेव करते जाएं, जो लास्ट वाला हाँ। उसका नेक्स्ट वाला सेम आ जाए तो वेरी हम गुड। वहाँ टर्मिनेट कर देंगे। वो वन वर्ड बता दीजिए बेटा कि उस वन वर्ड को हम क्या कहेंगे? क्या चीज़ सेम आ जा रहा है हमारा? सर प्रीवियस बहुत वैल्यू, सही बता रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू। एक टेक्निकल टर्म बताइए, टेक्निकल टर्म, उसको आप टेक्निकली क्या बोलेंगे? आपके इसी घर के आस-पास ही कहीं है, लिखा है, लिखा हुआ है। और ये मैं बता चुका हूँ। आप सब लोग 99.9% करेक्ट हो। जस्ट आई वांट 0.1 उसको टेक्निकल नाम आप दे दीजिए ताकि ये लगे कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आई मे बिकम श्योर। बिल्कुल सब सही बताए हो, कोई उसमें गलती है ही नहीं। हम बस उसको
सिनोनिम उसका पूछ रहे हैं, उसका सिनोनिम क्या दे सकते हो आप? क्योंकि आप पढ़ रहे हो के मीन्स क्लस्टरिंग, तो लैंग्वेज की जगह व्हाट विल बी द सिनोनिम? चलिए इट्स ओपन टू ऑल। सेंट्रोइड कोई कंपेयर करेंगे। सेंट्रॉइड वेरी नाइस। कंपेयर तो कर ही रहे हैं बेटा। सेंट्रॉइड चेंज होना बंद हो गया। यस सर, आपका पुराना सेंट्रोइड पुराना ग्रुप चेंज और नहीं नया होगा ग्रुप सर। ग्रुप वही बने रहेंगे, कोई चेंज ही नहीं आएगा। ओके, Yes, sir. तो वन वर्ड में यस, आप क्या बोल लेंगे? द एल्गोरिथम विल टर्मिनेट व्हेन सेंट्रॉइड डजंट सेंट्रोइड। चेंज। सेंट्रॉइड Yes, sir. डजंट चेंज और इट रिमेन्स द सेम। वेरी नाइस। तो आज के लेक्चर में हमें काफी इंटरेस्ट लगा। नया वाला टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है, तो चलिए उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए अभी उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। हमारा टारगेट था कि आप पहले क्लस्टरिंग समझें, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लस्टरिंग which was a nice compliment for me. So now it's time to mark your attendance in the chat box. So everyone write their attendance. अब आप के मीन समझ गए हैं तो सारी एल्गोरिथम समझ जाएंगे। अब Yes. आपको किसी भी एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने मेथड, ओके, तो इस चीज को हम आप आगे देखेंगे फर्दर। दोज हु हैव कंप्लीटेड अगेन दे मे लीव, or if there is any query you can ask. I am waiting for the persons for their attendance. Okay, fine, nice, thank you. कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन। And fine, those who have given the attendance, they may exit the meeting.